Today we are going to study physics of class 10, the chapters electricity. Electricity. First of all, we have to know about discovery of electricity. Thales of Miletus. 7 wise men of Greek, Thales of Miletus, they are called 7 wise men of Greek. First of all, they observed attraction of amber. When amber is rubbed, it attracts bits of a straw. They saw. Amber is called electron in Greek. Amber is called electron in Greek. So electricity terms come from this word electron. Sir William Gilbert rubbed glass rod with silk and said that glass rod is also attract other pieces of other things. Then Dufay told us 2 kinds of electricity which Benjamin Franklin cleared. Charges are of 2 types, positive and negative charge. When glass rod is rubbed with silk, glass rod is positive and silk becomes negative. And when ebonite is rubbed with fur, ebonite becomes negative and fur becomes positive. Fur becomes positive. Now we have to know about what is electric charge. Electric charge is only fundamental property of matter. Fundamental property of matter due to which there is attraction or repulsion between 2 bodies on rubbing. When 2 bodies are rubbed together, there may be attraction or repulsion between 2 bodies. Thus we can say charge is only fundamental properties of matter. Charge is of 2 types. One is called positive charge and another is called negative charge. When a body becomes positive and when a body becomes negative, when 2 bodies are rubbed, electrons, one body loses electron and another body gains electrons. One body loses electrons and another body gains electrons. The body which loses electrons becomes positive and the body which gains electron becomes positive. Is it okay? The body which loses electrons becomes positive and the body which gains electrons becomes negative. Now we study properties of charges. Like charges, that means positive and positive charges. Positive and positive charges repel to each other. Unlike charges, like positive and negative charges. Positive and negative charges attract to each other. Positive and positive repel, negative and negative repel, but positive and negative attract to each other. So it is one properties of charges. And another property, electric charges are additive algebraically. How algebraically? Plus minus. How can calculate? Plus 5 plus 3. How much? Plus 8 and minus 2 minus 4. How much? Minus 6. Plus 8 minus 6 is equal to plus 2. We can add it
we can edit them algebraically. Electric charges are conserved. That means it is neither electric charge can neither be created nor be destroyed. Electric charges can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another, but it cannot be lost. Then another, electric charges are quantized. Quantized means, what do you mean by quantized? Quantized means charge on a body is multiple integer of charge on one electron or proton. That means when charge on a body is maybe 2 times, 3 times, 4 times, 10 times of charge on electron. That means Q is equal to plus minus Ne. N is any number 1, 2, 3, 4, and E is charge on one electron. How much charge on one electron? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 10 to the power minus 19 coulomb. दो प्रकार के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, एक को कहेंगे कंडक्टर्स और एक को कहेंगे इंसुलेटर्स। किसको कंडक्टर्स कहेंगे? जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग आसानी से जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं करता है, जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो जितने मेटल्स हैं, मेटल्स कहने का मतलब कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब जो है सो कि इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराते हैं, इसीलिए इन लोगों को कंडक्टर कहेंगे। आयोनाइड गैस हो गया, लेकिन सभी गैसें, जितने गैस को आप देख रहे हो, ये लोग जो है सो कि इंसुलेटर होते हैं। ग्लास आप देखते हो, कांच, वो इंसुलेटर होता है। प्योर वाटर ये भी इंसुलेटर होता है। इससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं करता है। तो दो भागों में मैंने आपको बताया कि सब्सटेंस एक कंडक्टर होते हैं और एक इंसुलेटर होते हैं। समझ गए इस चीज को? आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? हम लोग करते हैं कि जब चार्ज जो है सो रेस्ट में रहता है, जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज को रेस्ट में रखते हैं तो उस समय उसके बारे में पढ़ते हैं, तब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों में क्लियर हम लोग डिफरेंस देख लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में हो और तब उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन में आता है और तब उसके बारे में अध्ययन किया जाए, उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम लोगों को अपने चैप्टर में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही बारे में पढ़ना है। अब यही से हम शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की दर। इस रेट को हम बहुत तरह से हम लोग समझ सकते हैं। बाजार में जाते हैं, हम लोग पूछते हैं क्या रेट है, किस रेट से आलू बेच रहे हैं, किस रेट से दाल बेच रहे हैं। तो वहाँ रेट जो होता है वह रेट मनी का रेट होता है। मनी पर बात करते हैं, रुपीज पर बात करते हैं, पैसे पर बात करते हैं, डॉलर पर बात करते हैं। तो वहाँ मनी की बात है। लेकिन यहाँ जो रेट है, यहाँ रेट हम बात करते हैं टाइम की, कि कितने टाइम में कितना फ्लो हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज।
जैसे आपको बात करनी हो घर पर तो आप कहते हो कि इस पाइप से हम 2 मिनट में 1 गिलास पानी हम इससे फ्लो कर रहे हैं, एक गिलास वाटर हम फ्लो कर रहे हैं। ठीक इसी हाल में इससे ये एक वायर है, मान लीजिए, इस वायर से कितने सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इससे गुजर गए, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर गए, इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट जितनी गुजर सकती है इससे, वही कहलाएगा कि यहां से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक करंट ओनली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाउ कैन राइट इट मैथमेटिकली? इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I is equal to Q by T. In how much time, how much electric charge? That means Q is equal to by T. इसके पहले एक और हम लोग Q का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि Q is equal to ME, एक फॉर्मूला Q का वहां मिला, ऐसे हम लोग Q का एक और निकल ले, Q is equal to by T। अब जरा सा देखें कि सर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं? हम लोग जाते हैं लेंथ मापने तो मीटर से माप लेते हैं, हम लोग जाते हैं जो है सो कि मास मापने तो केजी में माप लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापते हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट को सर एम्पियर में मापते हैं। सिंबल ए है कैपिटल। 1 एम्पियर कितना को कहेंगे सर? कितना को 1 एम्पियर कहेंगे? जब 1 कूलम्ब के, चूंकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू Q बाई T, तो यहां हम Q की जगह पर 1 कूलम्ब रखे हैं। 1 कूलम्ब के चार्ज को 1 सेकंड तक, 1 कूलम्ब के चार्ज को 1 सेकंड तक यदि जो है से किस पर फ्लो कराओ तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। यही बात मैंने बताया यहाँ पर। तो 1 एम्पियर यदि आपसे कोई पूछ दे तो हम आराम से बता सकते हैं कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना 1 कूलम्ब का इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित किया जाए तो उससे जितना जो है सो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहां सर आपने एक चीज बताया कि Q इक्वल टू 1 कूलम्ब लिया है। जी सर, Q माने चार्ज का यूनिट जो है कूलम्ब होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर से चार्ज का यूनिट कूलम्ब। आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो जब इतना कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना कूलम्ब में इतना कूलम्ब रखता है कौन? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब होता है, तो उलट के बोलिए ना कि इतना कूलम्ब चार्ज है किसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन के पास। तो आप निकाल सकते हो कितना कूलम्ब 1 इलेक्ट्रॉन के पास है। तो 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 1 कूलम्ब बराबर 1 में इतना लोगे, इतना हम लेंगे कैलकुलेट करके। यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज यदि आपको चाहिए, 1 कूलम्ब का यदि चार्ज आपको चाहिए, तो आप इतना इलेक्ट्रॉन ले लो गिन कर। इतना इलेक्ट्रॉन यदि गिन कर दिया आप ले लेते हो कितना? 6.25 × 10⁻18। इतनी अमाउंट है, ठीक से ध्यान रखिएगा। इतनी इलेक्ट्रॉन को यदि आप गिन कर अपने पास रख लो तो समझ जाओ कि आपके पास कितना चार्ज है। तो 1 कूलम्ब चार्ज आपके पास है। अगर एक दूसरा डेफिनेशन देखना चाहते हैं मुझसे कि सर 1 कूलम्ब किसको कहेंगे, 1 कूलम्ब तो बता देंगे कितना को 1 कूलम्ब कहते हैं। एक दूसरा और देखना चाहते हैं तो अगर 1 सेकंड के लिए यदि 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट यदि प्रवाहित तुम कर दो तो बुझ जाओ कि आपके पास यहां से कितना चार्ज गुजरा है। तो यहां से आपका 1 कूलम्ब का चार्ज गुजरा है। यही बात एक दूसरा डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया। एक बताया कि इतना यदि इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो बुझ जाओ कि 1 कूलम्ब चार्ज है, और दूसरा बता रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए यदि आप 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यहां से अगर गुजार दो तो समझ जाना कि यहां से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरा है। तो यहां से 1 कूलम्ब का इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरा है। ये सीधी सी बात है, यहाँ कोई झमेला नहीं है। इतना जब सीख गए हम लोग
तो हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं सीखे हैं। हम लोग दो फॉर्मूला पर यहाँ बात किए हैं, Q इक्वल टू आई टी और Q इक्वल टू एन ई। चाहते हैं हम कि कुछ डाटा है हमारे पास, इसको याद आप कर लीजिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। बस अगर इतना कुछ याद है तो हम लोग कुछ सवाल को टटोल सकते हैं। देखा जाए टटोला जाए सवाल को, चलिए टटोलते हैं सवाल को। तो हम लोग सीख लिए कि Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एन का मतलब क्या होता है 1 2 3, जितना अंक लगती है, जितना नंबर होता है। Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट क्या होता है कूलम। और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर। चलिए अब कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारे पास सवाल है कि व्हेन 450 कूलम, 450 कूलम, कूलम देखते हैं हमको समझ में आते हैं कि क्या दिया हुआ है। कूलम क्या दिया हुआ है तो सर Q दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Q दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बहुत हम ज्यादा लफड़ा में नहीं है, हम है कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ दिखाई देना चाहिए कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। इतना चीज आपके पास सामने है, दिखाई क्या दे रहा है। सर मुझे दिखाई दे रहा है 450 कूलम और दिया है 15 मिनट। ये हमको दो चीज दिखाई दे रहा है और एक तीसरा चीज भी दिखाई दे रहा है जिसको मुझे पता लगाना है, फाइंड करना है। किसको? तो इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को किससे सूचित करते हैं सर? I से। और ये Q है और ये क्या है? T है। इनके बीच रिलेशन क्या है? तो Q इक्वल टू I इक्वल टू Q बाई T, यही रिलेशन है इनके पास। इस रिलेशन के यूज करते हैं। Q के पास इसका वैल्यू रखते हैं, T के पास लिखा है 15 मिनट। मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में सर, मेरा आंसर जो है सो सर आ जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिखाई क्या दे रहा है, इस पर सब निर्भर कर रहा है कि आपकी आंख से क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ हमको ये दिखाई दिया, यहाँ मुझे ये दिखाई दिया। पता क्या लगाना है? तो सर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज पता लगाना है। कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q होता है और एम्पियर देखे तो हम समझ गए कि I दिया हुआ है और ये तो T है, ये है। बस इसका हम लोग काम किए, 15 मिनट दिया तो इसको सेकंड में चेंज किए, मेरा आंसर यहाँ आपके पास आ गया। इसके बाद फिर मेरे क्वेश्चन देखता हूं कि मेरे पास दिया क्या है सर? एम्पियर दिया हुआ है, हमको ये टाइम दिया हुआ है। एम्पियर का मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। मांग क्या रहा है आपसे? तो आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज मांग रहा है। बस इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q इक्वल टू आई टी, आई का वैल्यू रखेंगे, टी का वैल्यू, टी को चेंज कर देंगे, आवर में सेकंड में चेंज करेंगे, मुझे मिल गया आंसर। बोलिए कुछ है? कुछ नहीं है, नथिंग। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, इधर देखते माथा सर खत्म हो गया। नहीं, कुछ नहीं खत्म करना है आपको। तो मैंने बोला कि आपकी आंख कैसी है, क्या देख रही है आपकी आंख। बस जो आपकी आंख देखेगी ना, हम उसी से चलेंगे और मुझे पता लगा लेना है। यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ओहो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बातें नहीं पता है सर। अरे बताए है ना सर, हम लोग वहां गए नहीं है, हम बताते हैं। अभी आपको बताए थे कि दो फॉर्मूले से हम लोग भेंट किया था। एक भेंट किया था Q इक्वल टू आई टी और एक भेंट किया था आपके सामने Q इक्वल टू एन ई। बताइए, ये इनके ब्रदर हैं, आइए ये लोग भी इनके ब्रदर हैं, तो हई लोग क्या होंगे? ये लोग चाचा हो जाएंगे? नहीं, ये लोग ब्रदर हो जाएंगे। बस यही से काम मैं कर लेता हूँ। तो इनको मैं चिंता था आई टी और Q इक्वल टू एन ई, पर इनको हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, आई टी इक्वल टू एन ई, ठीक है। तब हमको निकालना क्या था? हमको तो नंबर निकालना है ना, यही ना पूछ रहा है हाउ मेनी। तो हाउ मेनी मैंने कितना, नंबर हमसे पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो n इक्वल टू आई टी बाई ई। हमको सब पता है कि I हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.2। देख नहीं समझ में आया है कि ए दिया तो ए का मतलब एम्पियर, ये I है और यहाँ 30 सेकंड दिया है और हम ई का मान ऐसे तो क्वेश्चन में दिया है आपका, लेकिन हमको याद भी है सर कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बस इसी को सोल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। n का मान फिर सोल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19। इतना इलेक्ट्रॉन जो है तो कि इसमें से फ्लो करेगा, ये सब घटनाएं घटेंगी। तो थैंक यू, आज के लिए मैंने इतना बता दिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन है मेरे पास, इसके बाद हम इसको नोट कर लीजिए। तो 5 क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो आज का मेरा 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हियर, विच इज करेक्ट। 5 क्वेश्चन हमारे पास है। इस 5 क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके
हमारे YouTube के कमेंट्स पर या Facebook के कमेंट्स या मैसेंजर पर भेज दीजिए। और जब एक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको स्कोर मिलेगा 1। ऐसे ही हमारे पूरे सभी एपिसोड को देखते चलिए। जब आपका स्कोर होगा 500 500 तब आपको हम ग्रीन गेट की उपाधि देंगे। 1000 स्कोर पर ब्लू बर्ड, 2000 स्कोर पर ब्लैक कमांडो, 5000 स्कोर पर रेड रोज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।